Hello, Assalamu alaikum dear trainees. Welcome back to this new video of English language. In today's class, we are going to talk about future perfect tense. But before going ahead, I want to know, are you damn excited to watch this video? Are you damn excited to learn this tense? If you are, so please tell me in the comment box that sir, by watching your video, we are super duper excited and we are learning something, sir. And student, why not to be happy? Why not to be excited? Because you are learning something that can uplift your personality, that can uplift your skill, that can nurture you, that can bring you. We cannot deny it's important. We cannot deny the importance of English. Nowadays, English has become the mother tongue of this world. And everybody should learn it. Everybody should understand it, should speak it. In our schools, colleges, universities, English is spoken everywhere. And it is the need of the hour. You can observe all the subjects, they are in English. If I talk about English, if I talk about chemistry, if I talk about mathematics, if I talk about any subject, they are in English. So don't you think we should learn this language? Of course, obviously, exactly, we should learn this language and we should speak this language. And I always say this thing to my student, to learn this language, you should practice it. You should practice on the daily basis. It's not a tough job, it's not a difficult job for you, it's an easy work for you. Any Tom and Harry can learn this language by practicing. You need to just practice for 2-3 months. After practicing 2-3 months, you will observe the change in your personality. You will see that now I have completely changed and I can talk to anyone. I can communicate to anyone. So student, now I will start my class. Listen to me very carefully and promise me, you will look at the board, you will pay attention over on the board, and you have to listen to me very carefully because focused is very, very important. I want you to be focused over here. So student, future perfect tense. What is future perfect tense? Where it can be used. And the most important thing, sir, how we can use this tense in our speaking. So I will teach you, I will guide you that how you can use in your speaking. Now you say, स्टूडेंट मैं थोड़ा सा उर्दू में आपको समझा देता हूं कि देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। देखिए फ्यूचर का मतलब आने वाला वक्त, मुस्तकबिल, आने वाला वक्त मुस्तकबिल। परफेक्ट मतलब आप परफेक्ट है, मतलब कोई काम परफेक्ट है, मुकम्मल हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो काम हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट यानी हमने ये सीखा कि कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका है। अब ये हम जुमले में यूज करते हैं, इस वजह से ये टेंस बोला जाता है। इसको मतलब हम while communicating, while talking we use this tense। देखें ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में काम मुकम्मल हो चुका होगा। ऐसे जुमले मिसाल के तौर पर मैं वहां जा चुका हूंगा, मैं पानी पी चुका हूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने आपको पढ़ाया, उसमें मैंने कहा मैं वहां जा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं वहां जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं वहां जा चुका हूंगा। अब देखिए हूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में कोई काम मुकम्मल हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में कोई काम मुकम्मल हो चुका था। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं ये टेंस बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए हम वर्क डन के लिए लगाएंगे। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, जो आपका काम होगा वो इस टेंस में मुकम्मल हो चुका होगा। अब टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि टाइमिंग या तो प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट टेंस, उसके रूल भी मैंने आपको स्ट्रक्चर से के अकॉर्डिंग सिखाया है कि जब प्रेजेंट होगा तो क्या रूल अप्लाई होंगे, पास्ट होगा तो क्या रूल अप्लाई होंगे, और फ्यूचर अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो टाइमिंग आप लगाएंगे प्रेजेंट या तो पास्ट होगा या फ्यूचर होगा, और वर्क डन मतलब इसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका है। देखिए ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। अब पहचान क्या है, उर्दू जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होगे, या अलिफ होगा, चोटिये होगी, बड़िये होगी,
होगे वगैरह आता है। स्टूडेंट, अब मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा या मैंने अपना होमवर्क कर लिया होगा। तो इट डजंट मीन कि अगर आपने चुका होगा, चुकी होगा, चुकी होगी देख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चुका होगा, चुकी होगी आएगा। इसका मतलब ये भी आ सकता है, एंड में कुछ और भी आ सकता है। सेंस को समझे माय डियर स्टूडेंट, सेंस को। अगर आप सेंस समझ गए ना, तो आप देख लोगे कि आपका कमांड इंग्लिश पे किस तरह आता है। देखिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर को देख ले। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर एक बात नोटिस करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह था। वहां पर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर का इसमें विल ऐड हुआ, विल लगा दिया हमने और हैव लगा दिया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में हम पास्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म हमने लगाया हैव। पास्ट में हम सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म हमने लगाया हैड। फ्यूचर में हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते, तो आप देख सकते हैं हमने विल के साथ क्या लगाया, हैव लगा दिया। और उसके बाद थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि हैव जब भी आपको दिखे और उसके बाद कोई मेन वर्ब आए, तो आप हमेशा थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये तो इंग्लिश का एक रूल है कि जब भी आपने हैव देखा, हैज, हैव, हेड देखा और उसके बाद थर्ड कोई फॉर्म आ रही है, कोई रियल वर्ब आ रही है, तो वो थर्ड फॉर्म होगी। स्टूडेंट जुमले की तरफ देखिए, वो अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी होगी। अब एक लड़की है, उसको कोई काम दिया गया, मतलब कोई रिपोर्ट, कोई ऑफिस वर्क में कोई काम दिया गया, तो किसी ने बताया कि वो अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी होगी। तो हमें इससे अंदाजा चल जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा एक लड़की है, तो शी। टेंस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे। शी विल हैव, she will have। अब देखिए स्टूडेंट, जुमले में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चला करे। आपको नीड है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलने की। हमने विल हैव लगा लिया। अब वर्ब क्या है हमारे पास, कोई भी काम चलने का, कूदने का। अब देखिए यहां पर काम क्या, तैयार कर चुका, मतलब तैयार करना। तैयार करने की इंग्लिश होती है प्रिपेयर, फेयर। लेकिन हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो शी विल हैव प्रिपेयर्ड, शी विल हैव प्रिपेयर्ड। अब किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है, अपनी रिपोर्ट, हर रिपोर्ट। ये चीज मैंने थाउजेंड ऑफ टाइम तो मैं एक्सजेरेशन के लिए बता रहा हूं, ये मैंने बहुत टाइम एक्सप्लेन किया स्टूडेंट को। अगर शी आया तो हर आएगा, ही आएगा तो हिज आएगा, दे आएगा तो दियर आएगा, वी आएगा तो अवर आएगा। अपनी बात मतलब अपने बारे में। शी विल हैव प्रिपेयर्ड हर रिपोर्ट, शी विल हैव प्रिपेयर्ड हर रिपोर्ट अगले हफ्ते तक, बाय। इस तक के लिए हम लगाते बाय नेक्स्ट वीक। शी विल हैव प्रिपेयर्ड हर रिपोर्ट बाय नेक्स्ट वीक। मैं रात तक अपनी किताब पढ़ चुका हूंगा। अब एक किताब होगी मेरे पास और मैं कहूंगा ये किताब मैं रात तक पढ़ चुका हूंगा। सो मैं मेक इंग्लिश आई विल हैव तो डायरेक्ट आंख बन के लगाओ, क्योंकि टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। आई विल हैव पढ़ चुका हूंगा, वर्ब हमारे पास क्या है, पढ़ चुका। आई विल हैव read, सही, थर्ड फॉर्म भी रीड है। आई विल हैव रीड अपनी किताब, माई बुक। आई विल हैव रीड माई बुक रात तक, बाय नाइट। मैंने आपको बता दिया तक के लिए हम बाय लगाते। आई विल हैव रीड माई बुक बाय नाइट। तुम दोपहर तक वर्जिश मुकम्मल कर चुके होगे। अब एक लड़के सामने वाला एक बंदा है, आप उसकी कह रहे हो कि तुम दोपहर तक तो वर्जिश मुकम्मल कर चुके होगे, तो तुम की इंग्लिश होती है स्टूडेंट यू विल हैव। देखिए मुकम्मल करने की इंग्लिश क्या है, थर्ड फॉर्म लगे, मुकम्मल करना कंप्लीट, तो थर्ड फॉर्म लगे कंप्लीटेड। स्टूडेंट अभी मुझे ये इतना नीड नहीं है कि मैं इसको मतलब और एक्सप्लेन करूं। मैंने अपनी प्रीवियस जितने भी टेंसेस की क्लास है, मैंने हर चीज एक्सप्लेन किया है कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फिर वर्ब जो आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसको किस तरह, उसकी उर्दू से इंग्लिश को किस तरह मतलब आप ट्रांसलेट करोगे, मैंने मुकम्मल पैटर्न सिखा दिया है, ठीक है ना। सो यू विल हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज, यू विल हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज दोपहर तक, बाय आफ्टर
noon. You will have completed exercise by afternoon. आयान अगले साल तक नया कोर्स मुकम्मल कर चुका होगा. एक लड़का है जिसका नाम आयान है, वो आप कह रहे हो कि अगले साल तक वो नया कोर्स मुकम्मल कर चुका होगा. सो आयान will have पहले वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे हम completed. नया कोर्स, द न्यू कोर्स. आयान विल हैव कंप्लीटेड द न्यू कोर्स अगले साल तक बाय नेक्स्ट ईयर. अगले हफ्ते तक बाय नेक्स्ट वीक, अगले दिन तक बाय नेक्स्ट डे, अगले साल तक बाय नेक्स्ट वीक. वो 1 घंटे में खाना बना चुकी होगी. एक लड़की है और आप उसके बारे में बात कर रहे हो कि वो 1 घंटे में खाना बना चुकी होगी. सो शी विल हैव. स्टूडेंट, आप ये वो मतलब लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप चुका होगी, चुकी होगी से अंदाजा लगाएंगे. चुके होंगे अगर वो की इंग्लिश देखिए. अब वो 1 घंटे में खाना बना चुकी होगी. चुकी होगी तो लड़का, चुका होगा तो लड़का, चुके होंगे तो ज्यादा लोग दे आएगा. फिर शी विल हैव खाने बनाने की इंग्लिश होती है खाना बनाने की. शी विल हैव कुक तो कुक्ड. शी विल हैव कुक्ड फूड. शी विल हैव कुक्ड फूड. अब यहां पर बिल्कुल बाय नहीं लगेगा, वो आपको पता है तक नहीं है इसमें. 1 घंटे में, तो 1 घंटे में की इंग्लिश होती है इन एन आवर. इन एन आवर. स्टूडेंट ये देखिए यहां पर पहला जो आवर का पहला जो सिलेबल है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, लेकिन इट डजंट मीन कि यहां पर ए आएगा, क्योंकि ये प्रोनाउंस होता है आवर. कुछ लोग इसको हावर पढ़ते हैं, हावर नहीं होता है आवर. सो इन एन आवर. तो स्टूडेंट मुझे यकीन है कि आपको ये पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के समझ आ गए होंगे. अब स्टूडेंट अगर मैं अभी यहां पर हैंड टू हैंड इसका नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपको एक्सप्लेन करूं तो कैसा रहेगा. देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए. मैंने अपने प्रीवियस सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव में और नेगेटिव से फिर इंटरोगेटिव में किस तरह चेंज करते हो. देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको अभी हैंड टू हैंड नेगेटिव में चेंज करूं तो बहुत ही आसान रूल है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है इसका. मैंने आपको बताया है कि जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हो तो आप उसकी वर्ब को देखोगे, और कौन सी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को. तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल. यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ब है, 2. अगर आप विल हैव दोनों को हेल्पिंग वर्ब ले लें, क्योंकि हमारे पास रियल वर्ब जो है मेन वर्ब है वो ये है, थर्ड फॉर्म है. ये 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास पहली आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे. हम क्या लगा देंगे स्टूडेंट, हम नॉट, सब्जेक्ट प्लस विल, नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया अब नेगेटिव स्ट्रक्चर. हाँ स्टूडेंट, जब भी आपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो उस स्ट्रक्चर में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा पहले आने वाला है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, तो आपका हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा. अब अगर इस सेंटेंसेस को मैं नेगेटिव में चेंज करूं तो क्या मुश्किल होगा? नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल मुश्किल नहीं. देखिए शी विल नॉट, आई विल नॉट, यू विल नॉट, आयान विल नॉट, शी विल नॉट. देखिए वो अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट नहीं तैयार कर चुकी होगी. शी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड हर रिपोर्ट बाय नेक्स्ट वीक. मैं रात तक अपनी किताब नहीं पढ़ चुका हूंगा. आई विल नॉट हैव रीड माई बुक बाय नाइट. तुम दोपहर तक वर्जिश नहीं मुकम्मल कर चुके होगे. यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज बाय आफ्टरनून. आयान अगले साल तक नया कोर्स मुकम्मल नहीं कर चुका होगा. आयान विल नॉट हैव कंप्लीटेड द न्यू कोर्स बाय नेक्स्ट ईयर. वो 1 घंटे में खाना नहीं बना चुकी होगी. शी विल नॉट हैव कुक द फूड या कुक फूड इन एन आवर. तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस, और उसके बाद मैंने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये कोई जो है ना टफ काम नहीं था, कि कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं था, आसान था. हमने पॉजिटिव से नेगेटिव किस तरह चेंज किया, हमने सब्जेक्ट प्लस विल और विल के बाद हमने डायरेक्ट नॉट लगा दिया. इसका रूल मैंने अच्छे से प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में किस तरह चेंज करते हैं. आज लेट्स मूव ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
किस तरह बना। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बट लेट मी आस्क यू दिस थिंग, still you are not able to translate all these sentences from Urdu to English. No dear students, now you are very much capable to translate all these sentences from Urdu to English, because you know the pattern, you know the structure, you know where to use subject, will plus have plus third form plus object, and by knowing all these things, now you can easily translate any sentence from Urdu to English. It's an easy job for you. Student, आप देख सकते हैं हमने आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, नेगेटिव सेंटेंसेस जितने भी थे हमने आपको बता दिया किस तरह इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अभी स्टूडेंट हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को सीखने जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फिर जुमले बनाएंगे। देखिए पहले जरा नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट देखिए इस स्ट्रक्चर में जो आपका विल आया है उसको हम उठा के जुमले के स्ट्रक्चर के स्टार्ट में ले आएंगे, या मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाया था, देखिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब, विल के बाद आपने नॉट लगाया था, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे तो आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। इन चीजों को मैंने बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस सेशन में, तो जिन लोगों ने भी हमारी प्रीवियस सेशन नहीं देखी तो इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू वॉच दूज ऑल सेशन, यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। डे फर्स्ट से शुरू करें और अब तक जितने भी मेरे सेशन हुए उसको अच्छे तरीके से देख लें, तो अभी तक जितने भी टेंसेस मैंने पढ़ाए ये आपको इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। देखिए विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमने नीचे उतार दिया, हैव को एज इट इज हमने रख दिया, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ हमने नॉट लगा दिया। नॉट भी आ सकता है लेकिन यूजुअली हम इसको बोलते नहीं। देखिए सेंटेंस, क्या तुम कल तक होमवर्क मुकम्मल कर चुके होगे, क्या तुम कल तक होमवर्क मुकम्मल कर चुके। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली हम तो स्कूल में यही पढ़ाया गया कि क्या की जो इंग्लिश होती है वो व्हाट होता है, लेकिन नहीं स्टूडेंट यहाँ पर क्या एज ए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्या तुम कल तक होमवर्क मुकम्मल कर चुके होगे, तो इसका इंग्लिश होगा, देखिए हमारे स्ट्रक्चर के कौन स्ट्रक्चर को देखिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे और हर सेंटेंस बनाओगे। विल तुम की इंग्लिश, विल यू हैव, will you have मुकम्मल completed, will you have completed homework कल तक by tomorrow, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, by tomorrow। क्या हम अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को खत्म कर चुके होंगे, क्या हम अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को खत्म, विल वी हैव, हम की इंग्लिश वी हैव, खत्म करना फिनिश्ड, फिनिश इस प्रोजेक्ट को, दिस प्रोजेक्ट अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ। विल वी हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, क्या वो महीने के आखिर में नई जबान सीख चुकी होगी, एक लड़की है, क्या वो महीने के आखिर में मतलब मंथ के एंड में वो नई जबान सीख चुकी होगी, विल शी हैव। अब सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, विल शी हैव लर्न्ड न्यू language, will she have learned new language। अब महीने के आखिर में इसकी इंग्लिश होगी स्टूडेंट, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द मंथ। Will she have learned new language by the end of the month। क्या तुम शाम तक सब लोगों को दावत दे चुके होगे, क्या तुम शाम तक सब लोगों को दावत दे चुके होगे। अब आपने किसी मतलब वेडिंग सेरेमनी के लिए या कोई ऐसा फंक्शन है, इसके लिए आपने जो है ना गेस्ट को इनवाइट करना है, तो आप किसी चीज को कह रहे हो, क्या तुम शाम तक सब लोगों को दावत दे चुके होगे। सो विल यू, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चले स्टूडेंट, विल यू हैव दावत देने की इंग्लिश होती है इनवाइट, तो इनवाइटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, विल यू हैव इनवाइटेड सब लोगों के लिए, ऑल द पीपल
all the people शाम तक, by evening, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क ना भूलिए, by the evening। तो ये थे हमारे पास डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड आई होप सो यू हैव लर्न दिस टेंस, you understood this tense, because this is very easy tense. While communicating, while talking, we use this tense very much. थोड़ा सा प्रैक्टिस करते फिर इस सेशन को वाइंड अप करते। मैं वहां जा चुका हूँ, आई विल हैव गॉन देयर, मैं कल तक वहां जा चुका हूँ, आई विल हैव गॉन देयर बाय टुमारो। मैं आपसे मिल चुका हूँ, आई विल हैव मेट यू, मैं कुछ खरीद चुका हूँ, आई हैव बॉट समथिंग।